Money, welcome back. Oop. Morning, welcome back. Sorry, I was hoping some of the money I gave to the government for taxes came back to me. They keep asking for more like I didn't pay them last month. What are they trying to be here? Netflix? So, when was the last time you showed people you were doing okay in life? And we're not talking about your mental well-being or your cholesterol levels from your health checkup. Boo, that's boring talk. What are the vibes you give off based on your material possessions? Cause that's all we care about as ravenous, short-form content addicts. The thing is, when Emily Blunt asks if you're wearing The Chanel boots? Yeah, I am. a lot of us are probably saying, no, I'm wearing Chantel's boots. When we're successful, earning a livable wage to afford basic necessities and some nice things, flaunting your wealth from time to time isn't a huge cause for concern. That's literally what we've been conditioned to do. Work, buy things, and show it off to people we find annoying. We want to show everyone we're Mr. Krabs. But in this economy, we relate more to Squidward. I'm all out of money! Well, you could just lie and make something up. The deception and charisma built for influencers is a pretty popular one. Once you start scrolling on any social media app, you're bound to come across an influencer that seemingly has a better life than you. I've already accepted the fact we Just ask yourself, is that true or not? चाहे तुम किसी भी देश में बैठे हो चाहे कहीं भी बैठे हो, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि नहीं? क्योंकि एक इंटरनेशनल, आई थिंक ये ग्लोबल एक्सपीरियंस है. तुम चाहे भारत में भी हो और तुम बैठ के देख रहे हो, तुम्हें भारतीय इन्फ्लुएंसर ऐसे दिखते हैं जिनको तुम देख रहे हो, तुमको देखने का मजा आता है क्योंकि somehow you just think they have everything better than what you have. And that's the sole reason why you're watching. They're not even interesting people. We all live different lives. You wake up at the crack of dawn to work out with your green juice, spin class, rise and grind, property owner mindset. I'm waking up at 5 a.m. to use the bathroom in the dark and then going back to sleep. And there is a shortage of fact checkers for the never-ending supply of online content. We're all playing the game of, is this thing I saw on the internet real or fake? Put a finger down if you've ever been a Facebook mom that accidentally spread misinformation. Well, can't really blame you. There's a funny thing influencers are doing where they like to show off their wealth online. But is that really all there is to it? I was shocked when I saw a TikTok about the sport pickleball that made me go, oh. And it wasn't from the unsettling Ellen jump scare back in 2023. I'm not sure what the concept is for this look, but this is randomized Sims behavior. Pickleball is like a form of ping pong tennis badminton that went through a transmutation circle. And who knew that such a normal sounding sport could be so expensive? By far the most expensive and consuming hobby I've picked up recently is pickleball. I have probably spent more than $15,000, $25,000 on this hobby, and I just started playing 10 months ago. Sorry, I just had to check my bank account to make sure I wasn't robbed. I played pickleball before, and I swear it was only like 1/1000th of what this lady spent. Are we paying for pickleball using Monopoly money? I didn't know you could do that. Maybe I should bring a stack to the grocery store, cause I'm trying to keep me and my dog fed. You know that feeling of wanting more pets to take care of, except conventional restrictions makes it so you can figures over the span of 10 months picking up a new sport. Not to be a professional or anything, but a simple hobby you do for fun, like opening and closing the fridge door, or dissociating in public. Correct me if I'm wrong, but I don't think pickleball was ever considered the golf of racket sports. Before it became mainstream, it was a toned-down version of tennis that people in their retirement age would play. Even on the higher end of starting pickleball, lessons, membership fees, your equipment, it would only cost you like 4 digits tops, not a down payment on a house. Where is the money going? Is she eating the ball after every game? You don't have to eat those, girl. We have pickles at home. There's the overpriced aloe outfits. हम एक समाज में रह रहे हैं जहाँ पे हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन शहरों के चलन में जो शहर प्राइमरीली बने हैं पैसे के फाउंडेशन से, और वो शहर में इंसान जाता भी है पैसा कमाने. ठीक है, तो तुम्हारे इंडिया में क्या हो गया? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, डा 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 डा, ये सोसाइटीज जहाँ पे अगर जो काम एक इंसान का एक नॉर्मल शहर में दुनिया के किसी भी, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ, फ्रांस में पेरिस में, और तुम फ्रांस के कहीं तुम थोड़ा सा जहां फ्रांस पेरिस से तुम दूर रहने लग जाओ और जाते चले जाओ तुम देखोगे प्राइस कम होते जाते हैं चीज़ों के. रेंट कम होता चला जाता है, यूटिलिटीज़ कम हो जाती हैं, ग्रोसरीज के भी तुम देखोगे. अगर तुम जो शॉप्स पे जा रहे हो, आई मीन ऑफ कोर्स तुम सुपरमार्केट अगर नहीं जा रहे हो, अगर तुम पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हो तो वहाँ पे प्राइसेस में डिफरेंस दिखेगा. यानी कि रहने का जो सस्टेनेंस का जो प्राइस है वो कम होता चला जाता है. दूसरी चीज़ तुम देखोगे, जितनी जहाँ तुम दूरी जा रहे हो इन शहरों से, तुम देख रहे हो वहाँ पे इंसान उतना ही कम सॉर्ट ऑफ एफर्ट डाल रहा है और ये बिलीफ सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत है खुश होने के लिए. कुल मिला के सेंटर में हमारी नीड है हैप्पीनेस. हर एक इंसान की नीड है हैप्पीनेस. होता क्या है, आप चाहे न्यूयॉर्क में बैठे हो, चाहे आप पेरिस में बैठे हो, चाहे आप मुंबई में बैठे हो, इन शहरों में इंसान कन्विंस्ड है क्योंकि पैसा
इज द सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन शहरों में जो आपको बुला रही है और जो आपको फिर उस चीज में जो वर्शिप करवाती है, वो है पैसा। और हर इंसान को, क्योंकि भाई रेंट, तो एक छोटी सी बात देखो, तो 15-20 हजार दे रहे हो टॉयलेट जितने बड़े कमरे के लिए। कोई भी इंसान टॉयलेट जितने बड़े कमरे में बैठ के खुश नहीं है अपनी जिंदगी अगर व्यतीत कर रहा है, तो उसको पता चलता है मेरे को खुशी कब मिलेगी, जब मेरे पास कम से कम 60-70 हजार रुपए होंगे ताकि मैं कम से कम फ्लैट अफोर्ड कर पाऊं। मैं कह रहा हूं 60-70 हजार होंगे रेंट मनी देने के लिए। तो अब ऑटोमेटिकली भाई एक तरह से कन्विंस्ड हो रहे हो, राइट? या आप बिलीफ आप डेवलप कर लेते हो कि शिट यार पैसा चाहिए होगा तभी जाके मैं एक इतना तो डिसेंट रीजनेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर पाऊंगा जिसमें, जिसको जीवन कहते हैं, जिसके अंदर जीने को जीना कहते हैं। भाई खुद की इज्जत होगी, रोशनी आएगी, शायद बाहर से खिड़कियां होंगी, शायद वहां पे टॉयलेट होगा जो कि शायद टॉयलेट घर के अंदर है, ये नहीं कि टॉयलेट टॉयलेट के अंदर है जहां पे अभी मैं रह रहा हूं। पहला आता है ये बेसिक सस्टेनेंस। इतना ज्यादा रेंट, इतना ज्यादा महंगा है कि आप इन जगहों पे रह रहे हो तो आप एक इंसान की तरह नहीं रह रहे, आप एक भेड़ की तरह रह रहे हो, आप कैटल की तरह रह रहे हो। दूसरा फिर फैक्टर आता है सोशल कंपैरिजन। हर कोई जो आपको खुश दिख रहा है, या जो भी मार्कर्स या मैट्रिक्स आप देख रहे हो अपने अराउंड, जहां पे इंसान अपनी सेल्फ एस्टीम जिसे अटैच करके बैठा है, वो अमीर ही हैं। तो आप देख रहे हो और देखकर जानकर ही हम सामाजिक सत्यों को, यहां पे मैं सामाजिक सत्य बात कर रहा हूं, सत्य की बात नहीं कर रहा। सत्य बहुत ऊपर है, समाज हमने रचा है, इंसान ने रचा है। तो इंसानी सत्य यानी कि द ट्रूथ अबाउट ह्यूमंस, मुंबई के अंदर क्या हुआ भाई, इट्स लार्जली डिपेंडेंट ऑन तुम फाइनेंशियल, तुम्हारी औकात क्या है, उस हिसाब से भाई लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, उस हिसाब से तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उस हिसाब से तुम अपने आप को मुंबई में ज्यादा सस्टेन कर पाओगे, उस हिसाब से तुम्हारा लाइफस्टाइल बेटर होगा, उस हिसाब से तुम ज्यादा खाना खा पाओगे, उस हिसाब से शायद तुम्हारा सर्कल बढ़ेगा, याडा याडा याडा। ठीक है? तो भाई कुल मिला के इन जगहों पे हो क्या जाता है, जिंदगी बन जाती है एक मिनी वर्जन ऑफ कि भैया बस पैसे के पुजारी बन जाओ, पैसे धर्म के, उसके ही तुम बन जाते हो वन ऑफ द फॉलोअर्स, खत्म बात। और फिर वहां से आती हैं ऐसी रील्स। तो असली आपके इन्फ्लुएंसर्स आपको उस चीज के देवता बन के आपको और प्रमाण दे रहे हैं कि देखो ये सत्य है। दूसरा सत्य क्या भाई, तुमको सिंपल इस वहम से मुक्त होना है। पैसे की जरूरत है, कोई नहीं कहता पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर चलाना है, लेकिन पैसे इसलिए कमाओ क्योंकि पैसे की जरूरत है और पैसे से जरूरतें सॉल्व होती हैं। यू पे फॉर थिंग्स दैट रिड्यूस स्ट्रेसर्स फ्रॉम योर लाइफ। पैसे को सेल्फ एस्टीम से अटैच मत करो, पैसे को अपनी आइडेंटिटी से अटैच मत करो, पैसे की वर्शिप मत करो। ये एक अलग एक्सट्रीम पे जा रहे हो आप। एक महीने के मैं देती हूं $15,000 रैकेट बॉल या जो भी खेल रही है उसके लिए, यहां पे आप एक्सट्रीम पे चले गए, बट ये आपको बेचा जा रहा है, आप इसको लाइक करो, और ऐसे ही 2 करोड़ के कंटेंट को आप लाइक करते हो। एक इंसान जो क्लियरली खुश था भाई 500 रुपए या 1,000 रुपए की कॉटन शर्ट पहन के, और उसको लग रहा है भाई मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है, महंगी शर्ट है, वही उस इंसान को एक सर्कल में पुट कर दो, मुंबई दिल्ली के, थोड़ा सा जो पैसा कमा लेगा, उसको लगेगा ये 2 कौड़ी की शर्ट है। अब समझो फर्क क्या हुआ, सोच और एक्सपोजर से हुआ। उसने जहां अपनी जो खुद का उसको जो रीजनिंग दिमाग में चल रही थी, उसके हिसाब से उसको लगा ये शर्ट सेटिस्फाई करती है जो भी फंक्शंस हैं शर्ट के। बट जहां उसको आपने दूसरे सर्कल में पुट किया, वहीं जहां पे पैसा वर्शिप किया जा रहा है, वहां पे उसको होगा कि अब ये 15,000 की जब तक शर्ट नहीं है, 40,000 की जब तक शर्ट नहीं है, तब तक मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने अराउंड भाई, अरे ये तो 15,000 की शर्ट पहनना है, ये 20,000 की शर्ट पहनना है, मुझे ये ब्रांड पहनना है, मुझे वो ब्रांड पहनना है। अच्छा खासा आपकी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन था 500 रुपए में, आप 500 से 15,000 रुपए चले गए, तो कोई स्ट्रेसर रिमूव नहीं हुआ यहाँ पे। आपने एक सोच में नई चीज ऐड करी बस, कि मैं कन्विंस हुआ हूं थ्रू आइदर वॉचिंग दिस, थ्रू आइदर जस्ट माई सोशल सर्कल्स, थ्रू आइदर द जो भी जिस जगह पे मैं रह रहा हूं, जो कि एकदम बुरी तरह से मटीरियलिज्म बेच रही है आपको, फर्जी का पूजा कराई जा रही है। और यही है सत्य भाई। तुम अभी उधर से निकल जाओ, दूसरे शहर चले जाओ, अभी तुम्हारे बाल बच्चे हो, तुम्हें कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई थूक नहीं रहा, तो 15,000 की शर्ट पहनो, 500 की शर्ट पहनो। बट मैं ये कह रहा हूं, दिखावा इंसान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये नहीं उसको अपने दिमाग में कि मेरे को आज सुबह उठ के दिखावा करना है, नहीं, उसको लगता है कि दिखावा करना जरूरी है हैप्पीनेस के लिए। तो मुझे महंगी से महंगी, बड़ी से बड़ी चीज उसको कन्विंस करा दिया गया है। और तुम ये चीज देखोगे हमेशा, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टाइम, वो पूल ऐसे में प्लेस्ड होगा जहां पे ये चलन है। वो रह रहा होगा दुबई में, वो रह रहा होगा लंदन में। दूसरा सिंपल आंसर है भाई, बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, पैसे की जरूरत है, जरूरतें पूरे करने के लिए।
बहुत जरूरत है। तो पैसा जितना कमाओ उतना कम है, अच्छी बात है पैसा कमाओ, लेकिन खुशी, संतुष्टि, सुख का गेम थोड़ा सा दूसरा है। वो यहां का गेम है। उसके लिए मुझे बस अपने से बात करनी है, मुझे खुद अपने आप से पूछना है, भाई या बहन, संतुष्टि, सुख, ये सब चीजें 2 लाख साल से, 3 लाख साल से, 4 लाख साल से इंसानी जीवन में एग्जिस्ट कर रही है, या फिर उस इंसान से पहले के भी जो आते थे, हमारे दूसरे जो पुराने वो थे एंसेस्टर्स, सबके जीवन में किया है। 2 लाख साल पहले ये मटीरियलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 20,000 साल पहले ये मटीरियलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तब भी इंसान खुश था ना। यानी कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया गया, आपको काटा गया आपका बहुत कायदे से, कि खुशी का लेना देना है इन चीजों से, 15,000 की शर्ट से नहीं था। पर इंसान कभी खुशी नहीं होता ना, 15 की शर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी पहले। मे भी हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जब होती थी, हम खुश होते थे। मैं भी अपने लिए, हर एक इंसान के लिए डिफाइंड था मुझे क्या करना है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, ड्यूटी कह सकते हैं। अपने रोल्स आपके डिफाइंड थे। आपके समाज में आपका रोल क्या है, आप समाज में कितनी सोशल स्टैंडर्ड रखते हो, दूसरा आपकी रुचि किस में है। इन सब चीजों से इंसान को अपार खुशी मिलती थी, सुख मिलता था। ये उत्तर इसलिए आज भी साइंस, तुम जितनी हैप्पीनेस की रिसर्चेस में ले लो, जितनी ज्यादा 80 साल की हो, 20 साल की हो, मेटा एनालिसिस हो, जो कि पूरा 5-10 हजार रिसर्चेस देख रहा है, सब में एट द एंड यही आंसर निकलते रहते हैं, यही निकलते रहते हैं टाइम आफ्टर टाइम। इकोनॉमिक्स की रिसर्च में मिलता है भैया तुम्हारे को, जितनी भी बिहेवियर इकोनॉमिक्स की रिसर्च होती है पैसे को लेके, कि प्लेटो कर जाता है, उसके बाद 50 अदर फैक्टर्स हैं। The $250 paddles, the private lessons with pros, the club membership fees, and most importantly, there's the loss of income because I most recently took off a month from work just to move to California and improve my pickleball game. Just to move to कौन सी सोसाइटी, किसकी बात कर रहा हूं मैं तेरे से? कैलिफोर्निया। आपको ये मूर्खत्व वाली चीजें करनी पड़ती हैं जब आप ऐसे समाजों में आ जाते हो। और दूसरी बात, जब आप खुद एनालिटिकल थिंकिंग से लैकिंग हो, जो इंसान खुद बैठ के चीजों का अध्ययन नहीं कर रहा, सोच नहीं रहा, एनालाइज नहीं कर रहा, यार ये मैं कर क्या रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, ये एक्सपेंस, डज दिस मेक सेंस, व्हाट एम आई अचीविंग हियर, ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं। भीड़ कर रही है, उसने किया, ये मुझे कूल लगता है, अब मैं भी करूंगा, इसमें क्या था? सिर्फ मूर्खता है ना, सोच नहीं लगी। जहां सोच नहीं लग रही उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव, डेफिनेशनली उसको कहते हैं मूर्खता। As if I was a retired snowbird at 36. But it really did pay off. I won my first singles tournament in San Diego, and I probably have amassed 50 new friends from the sport. I have zero regrets, but I may be broke soon. Oh, that makes a lot of sense. Wait. It doesn't. Unless you're living in Antarctica, was there not affordable pickleball where you lived? As a fun game, let's reevaluate our choices. Alo is an athletic apparel brand that makes high-quality workout clothes, hence the brand name pricing, where a 2-item outfit will cost you between $300 to $500. The last time I checked, you can show up to pickleball in your high school gym clothes and equipment you ordered on Amazon the night before. Unless someone held her hostage until she became an Alo brand ambassador, we could have saved some money on the clothing choices. But you can kind of assume what type of lifestyle she lives or the one she wants to portray based on what she posts. Maybe this is how people in higher tax brackets or who work in corporate think. The average person usually doesn't calculate the time they spent on their hobbies as lost income and then say they spent $20,000 picking up knitting. If that were the case, people making 6 figures a month would never do anything because their time is worth so much. Maybe she can sell her Alo clothes on Depop if she runs out of money, like she said. This gives off the same energy as that guy on Twitter who needed some help budgeting his expenses. Someone who is good at economy, please help me budget this. My family is dying. Spend less on candles. Is pickleball actually ruining your life? If you ask me, seems like a very preventable problem. Little misleading of a title, but it did get people talking to drive up her engagement. Hey, if I could take a month off work to get really good at tennis that it causes a dinosaur extinction, I quit my job too. When your online brand is based on your image and how you appear to others, of course you're gonna sprinkle some seasoning on your content to make it spicy. Not straight up lie, but maybe exaggerate a little and only show the good parts. Flex culture in Asia, unsurprisingly, is really common. It's not unusual to see people spending their entire paychecks on luxury goods to appear well off. When behind the scenes, you're eating paper-thin slices of bread and your mansion is actually a green screen from Wish. Hey, at least you have a Chanel fire extinguisher in your basement. You can scare off the fire by showing them the receipt. Wearing brand name fashion is one of the easiest ways to show off your wealth. You ever been to college जिंदगी before? में मैं बहुत छोटा सा आपको हैक बता रहा हूँ, और ये हैक की मैं रिसर्च शेयर करूंगा आने वाले टाइम, क्योंकि इसमें
आई थिंक इनसरमाउंटेबल रिसर्च है, और ये सबसे ज़्यादा भयंकर लेवल पे डोमिनेटिंग और बर्जनिंग तुम्हारी रिसर्च तुम कह सकते हो टॉपिक या फील्ड है। और साइकोलॉजी में भी, सिंपल थेरेपी में, जो दुनिया के जिस लेवल पे डोमिनेट कर रही है इसकी कोई हद नहीं है। मैं खुद देख रहा हूँ, न्यूरोसाइंस से लेके साइकाइट्री उठा लो, माइंडफुलनेस। एंड माइंडफुलनेस पे हम क्या बात कर रहे हैं? बेसिकली जो तुम्हारे माता पिता ने बचपन से तुम्हें जो बात कर रहे थे, योगा से लेके मेडिटेशन तक, सारी चीज़ें जो तुम सिंपल पैदा हुए हो देखते हुए टीवी पे माता पिता को करते हुए, सुबह तुम्हारे 5 6 बजे 7 बजे तुम्हारे घर में मम्मी पापा करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, माइंडफुलनेस। जिंदगी में एक बात छोटी सी बता रहा हूँ, जब भी आप इतनी बकर 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 चक्कर 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 सुनो, अगर आप ऐसे कर रहे हो और आपको बुरा लगने लग जाए ना, मेरी बात समझना हो सकता है, लड़की का लेके बुरा लग रहा हो, कोई लोनलीनेस का लेके बुरा लग रहा हो, कभी उसको बुरा लेके लग रहा हो, ओ मेरी जिंदगी लड़की हो तो ये सब नहीं है। सिंपल फोन छोड़ो और 15 मिनट सिंपल आंख बंद करो, बैठो और कुछ मत सोचो, सांस पे फोकस कर लो। अगर बहुत मुश्किल है कुछ ना सोचना, कि बस सांस पे फोकस करो, 15 मिनट 20 मिनट बस मेडिटेट करो। 80 प्रकार की चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हें ना इंट्रोड्यूस करी गई होती तो तुम खुश थे। यानी कि गोल सामने हैं, हाथ चलते हैं, दिमाग चलता है, रूम है, तुम्हारे हाथ में तुमने ये भैया उठाया डिवाइस, और तुम स्क्रॉल करके आप खुद से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ब्रिंग करो अपनी जिंदगी में जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, माता पिता लड़ते हैं, परेशानी है, माता पिता को बात नहीं करना आता तुमसे, कोई ताने कसता है, तुम किसी से प्यार करते हो, तो ऑलरेडी तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन भाई आदमी ये करके क्या करता है, हम अब 2500 नई प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करता हूं अपनी जिंदगी में। तो एक बात बताओ, जब जो तेरे को सामने तेरी जो ड्यूटी रखी है, तो उस पर टाइम कब देगा? क्योंकि तूने अपने मूड की तो परखच्चे उड़ा दी ना। तू बुरा भी फील हो लिया तो अपनी सेल्फ एस्टीम के भी परखच्चे उड़ा दिया। तूने अपने आप को ये भी विश्वास दिला दिया कि भाई मेरे को कभी जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, ना मुझे ऐसा कोई प्यार मिलने वाला है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो तूने परखच्चे उड़ा दिए उससे अपने। जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, अब वो क्रिएट हो चुकी हैं, जिनकी वजह से जजमेंट्स भी आ चुके हैं, जिस वजह से सेल्फ एस्टीम प्लमेट कर गई। काम क्या, वो जो होना था वो तो छोड़ ही दो, आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन इसका क्या है? जब फालतू चीज आने लग जाए, दिमाग को क्लियर करो, शांति लाओ, शांति लाओ अपनी जिंदगी में। इसकी धुन धुन और नॉइस से अपने बुद्धि को रिंस करो, क्लियर इट। सिंपल मेडिटेट करने 15 20 30 मिनट बस सांस पे ध्यान दो, और तुम वापस फिर आ गए हो, एक तरह से कह लो रीसेट पे। तुम वो उस ख्याल से वापस दूर जा चुके हो, और तुम अपने दिमाग में बहुत अच्छे लेवल पे महसूस करोगे शांति, सुकून, रिलैक्सेशन। सो वो स्ट्रेस, नेगेटिविटी, उससे भी तुम दूर चले गए। 20-30 मिनट अगर रोज बैठने लग गए तो इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसका तो मैं कहूंगा रोज करो भाई, चीज को रख दो, कहो 15 मिनट का ब्रेक ले रहा, 20 मिनट का ब्रेक ले रहा, एक टाइमर सेट करो, 20 मिनट सिंपल बस अपनी सांस पर फोकस करो। इतनी सारी भाषण, इतने सारे धागे, इतने सारे चेन्स, इतने सारे तुम्हारे हाईली कंडक्टिंग वायर से अपने आप को अटैच करके तुम किस तरह के 2 कौड़ी का इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसको काटना है, उसको काटना है। क्योंकि ये जिस दिन ये चल गया एनालिटिकल थिंकिंग, और जिस दिन एनालिटिकल थिंकिंग के पास ताकत है, वो सब कुछ खुद ही हटा देगी। कहेगी कि मैं क्यों करूं, तो बेवकूफ़ी है, मैं क्यों बुरा फील करूं उसके बारे में, मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। Experience of seeing foreign exchange students in the wild in their decked out Balenciaga off-white drip during a 7 a.m. lecture is a universal one. Givenchy jacket, and it's a Balenciaga pants. Yes. Crazy Rich Asians. Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Dior, Prada, Versace, Naruto Imagine Uzumaki. ये कल्चर एक टाइम पे बुद्धिज्म डोमिनेंट रिलीजन था इन सारे कल्चर्स में, हमारे ईस्ट एशिया में। Aaliyah, Rose. These are brand names you'll hear when you see rich influencers showing off their tiny purse haul from the day before. Who needs groceries when you can eat your clothes with your eyes? These are my ladies. This is Jill. This is my lady Amy, little Susie, Brianna. You know why we call her Brianna, right? 너의 배, 너의 배, 너의 배, 너의 배, 너의 배. Yay! एक्चुअल से कोई यही नहीं है, क्योंकि ये जैसी चीज़ें इस घर पे हैं, तुम्हारे घर के अगल बगल लगे, एक दिन ये भी एक चीज़ बन जाएगी। चीज़ एक चीज़ है और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। तुम्हारी समझ में एक बहुत ही डीप लेवल पे तुमको पता है ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तुमको समाज कह रहा है चीख चीख के कि नहीं, ऑब्जेक्ट की बहुत वैल्यू है, जिस चक्कर में तुम हवाइयाँ तुम्हारी उड़ गई और तुम एक्साइटमेंट में आके खरीद दियो, 40-50 हज़ार रुपये पेल दियो अपने। लेकिन उसके बाद घर में जब वो टंगी होगी ना, और 13 दिन निकल चुके होंगे, 130 दिन निकल चुके होंगे, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये शर्ट ही तो थी, ये ख्याल आएगा तुम्हारे दिमाग में।
40,000 टंगे हैं, लेकिन तुम्हें दिखावा करना है, तुमको कन्विंस कराया जा रहा है। एक चीज समझना, ट्रिक है वो, यही पुकार आपके कान में कह रही कि सब 2 कौड़ी की टेंडेंसीज के प्रति बस तू मान ले, तू तबाह अपने आप हो जाएगा। आइडिया एक वायरस की तरह होता है, जिस दिन आइडिया प्लांट हो गया ब्रेन में, उसने अपनी रूट खुद ही ले ली। तुम्हारा इंसेप्शन मूवी का होल प्लॉट ही तो यही है, वो ड्रीम्स बस एक आइडिया प्लांट करते हैं, ये आइडिया की रूट छोटी सी एक बीज प्लांट करते हैं, उनको उसके बाद कुछ नहीं करना। जहां उसने जन्म ले लिया उसके बाद वो आइडिया खुद कर देगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें उस इंसान से कभी मिलना ही नहीं है। For people who don't know, they just showed someone's yearly salary in the span of 15 seconds. The beauty standards in Asia are on a whole other level, and so is everything else that's tied with your appearance. Yeah, looks maxing is pretty crazy in North America, but that's for regular mortals. Asian looks maxing is on God mode. In East Asia, your financial success and your attractiveness are like this. It's a very homogeneous. सबसे बेवकूफ बनाने वाले इंसान को 2 चीजें जिनसे बहुत दूर रहना, जो सबसे फ्लीटिंग है, मटेरियलिज्म और लस्ट। सबसे बेस टेंडेंसी जिनको एक्सप्लॉइट करना सबसे आसान है, क्योंकि आपकी खोपड़ी सबसे तेज घूमती है। पहला है लस्ट, ठीक है, एक रीजन है भाई, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है लस्ट के नाम पे, और लोग गिरते रहते हैं और वो कभी खत्म नहीं होने वाला, जो दूसरा सत्य है। दूसरा मटेरियलिज्म। ये सिंपल 2 ऐसी चीजें जब तक ये एग्जिस्ट करेंगी, करोड़ों कमाते रहेंगे वो लोग जो इनको लेके रिंग मास्टर की तरह नचा सकते हैं आपके सामने। आप फेंकते रहोगे अपना पैसा। और सिंपल तुम अगर अपने आप से पूछ सकते हो कि यार क्या मेरे जीवन के सारे पल थे, अगर मैं सिंपल एक पुराना पीछे पलट के देखूं जिनमें मुझे एक्चुअली में बहुत सुख मिला है, तो मैं दिखेगा बहुत ही कम होंगे जिनका बहुत कम क्या हो सकता कोई ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म और लस्ट अटैच था। सुख मतलब स्माइल थी पूरे दिन, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, लस्ट के साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस है, सम टोटल अगर आप 100 एक्सपीरियंसेस याद कर लो लस्ट को लेके, तो आपको दिखेगा 90 से 99 आप रिग्रेट कर रहे हो, आप अशेम्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप कोई कैम वैम जो साइट्स होती हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि भाई मैंने अपनी पूरी सैलरी घुसा रखी है। तो में से कितने हो जो शायद ओनली फैन सब्सक्रिप्शन खरीदे हो, उस पर खरीदे बाद लगा था क्या पैसे लुटा दिया यार। दूसरी कॉस्ट ले लो भाई, तुम में से कितने हो जो अपने शायद जब अपना पार्टनर है उससे रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि तुम एडिक्टेड हो इन सब चीजों को देखने में। आओ, ये कॉस्ट हो गई रिलेशनशिप कॉस्ट। तुम में से कितने हो जो दिल में हाथ रख के बात कहो मुझसे, पता नहीं कितने घंटे कितने दिन, अगर घंटे गिने जाएं तो तुमने तबाह कर दिए हैं ये सब देख देख के। कितनी अपॉर्चुनिटी थी तुमको, तुम कह सकते हो डायरेक्ट मैं कोरिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो मेरे पर खच्चोड़ आए मेरी अपॉर्चुनिटी के, वो ये था कि मैं यही पूरे दिन देखता रहता था, यही फॉलो करता रहता था। इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, जिससे मेरे मानसिक संतुलन पे, मेरी मानसिक स्थिति पे बहुत फर्क पड़ा है। तो कॉस्ट देखो ना इन सब चीजों की। सेम मटेरियलिज्म की, खरीद लो 40,000 रुपए की एक शर्ट डाल के, 80 लाख की कार खरीद लियो। एक रीजन है, बुगाड़ी चुगाड़ी करने के बाद तुम भी बात करोगे मेडिटेशन की ही। पहले दिन होगा कि दूसरे दिन होगा तीसरे दिन होगा तेज चला दी, चौथे दिन होगा अच्छा और तेज चला दी, 5वें दिन इसीलिए तुम भाई दूसरी कार खरीदते हो जाके, क्योंकि वो हाई जा चुका है जो तुम खरीदे थे, तुम्हें वो वापस वो हाई चाहिए, तो तुम्हें एक और खरीदनी पड़ती है, फिर उसको दौड़ाना पड़ता है। देखो भाई, अगर कोई बहुत पैसा कमाता है और किसी का है लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी तरह की, आपको ऑटोमोबाइल या जो भी, आपको इंजीनियरिंग से प्यार है एंड लेट्स से आपको शौक था, बचपन से आप गेम खेलते रहो, आपके पास है, अफोर्ड कर सकते हो, मानी हो गए जैसे करते हो भाई, तो तुम खरीदो, ठीक है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी चीज के गुलाम बनना और किसी चीज को शौकिया समझना, सेवन करना, वो अलग चीज हो गई। गुलामी होती है कि भाई आप डेली उठते हो और आपको होता है यार आज ये चीज खाएं, इवन दो वो हार्मफुल है आपके लिए। शौकिया होता है भाई महीने में एक बार खा लिया। सुख शांति किधर है तू खुद बता। तेरे को जो बेचा जा रहा है वो अनलर्निंग बहुत कठिन होती है एक्चुअल में, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि तुमको बहुत इल्यूजन्स बेच दिए गए हैं ड्रीम्स के नाम पे, जिनको तुम कैटेगराइज कर रहे हो एज रियलिटी। तुम कह रहे हो मेरे को तो खुशी तभी मिलेगी, लेकिन सच क्या जब वो चीज मिल जाएगी तो पता चलेगा शिट ये तो बेचा गया था। क्योंकि जब जी रहे होगे तुम कहोगे ले उसकी तो खुशी मिली नहीं। तो मुझे खुद से अब बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। एक एनालिटिकल इंसान ही फिगर आउट कर सकता है, आपको कोई बहुत एनलाइटमेंट नहीं चाहिए उसके लिए। पैसे की यूटिलिटी बहुत है, क्योंकि हम पैसे से दुनिया चलती है, समाज में चीजें आती हैं, घर में तुम्हारे जो भी आएगा, अपने घर वालों को जो सुख प्रोवाइड कर पाओगे, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, तो पैसे की यूटिलिटी तो बहुत है। इसलिए लेकिन पैसे को कमाओ, क्योंकि तुम्हें पता है पैसे से यार चीजें हल होती हैं। स्टेबिलिटी फिर दिखेगी तुम्हारे को, इंसान कहेगा कि हाँ स्टेबल इंसान है, समझदार है। In a society where you're expected to fit in, when everyone's got the latest luxury water bottle from Hermes and you show up with your
Dasani, you become a target and face getting ostracized. Lots of young millennials, Gen Z, even middle schoolers are familiar with expensive brands and what wearing them implies. There was even a case a few months ago when Stanley cups were flying off the shelves like toilet paper. A kid got bullied at school for having a Walmart brand cup instead of a Stanley cup. This is the cup that we got our daughter for Christmas. This is not a Stanley. This is a $9.98 Walmart cup that she said she thought was cute. She is 9 years old. On the second day back to school after Christmas break, she comes home. She's not crying. She's just upset. The girls, all the other girls in her grade, I'm not saying all, maybe she said 9, 10 of them, all got Stanleys for Christmas. And they made sure to let her know that this is not a real Stanley, that this is fake and it's not as cool. So 9 years old 9 साल के बच्चे में कोई दिमाग नहीं है. ये उनके माँ बाप की परवरिश है. यही मैं कह रहा हूँ. आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हो, फिर अपने बच्चों को भी आप वही बना देते हो. बच्चा, एक 9 साल के बच्चे को वही सीख मिल रही है, वही समझ मिल रही है, वो वही इमिटेट कर रहा है जो अपने माँ बाप को देख रहा करते हैं और अपने रिश्तेदारों को देख रहा है जो करीब के हो गए. तो अमीरी इसमें परेशानी नहीं है. मैंने यही बात की ना, समझदार अमीर भी होते हैं, फिर ऐसे मूर्ख अमीर भी होते हैं जो सिंपल मटीरियलिज्म और लस्ट की पूजा कर रहे हैं. ये लस्ट के पूजा करते रहेंगे, भूखे रहेंगे, यहां से लार टपकती रहेगी. लस्ट लस्ट, शादी होगी लेकिन शादी बाद भी लस्ट लस्ट. अरे भाड़ में गया, आओ उधर पूरा करें, इधर ऐसे पूरा करें. अरे ये करते तो शादी का चूमर बना देते हैं. लस्ट के नाम पे कितने लोग हैं जो तुम्हें क्या पता पीछे और चाहिए, इसको भी चाहिए, उसको भी खाना है, अरे इसको देखना. ऐसे लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं. क्यों? आप उस समाज में रह रहे हो. हमारे समाज में क्या, आज फोन उठा लो, 2 चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेंगी सिंपल स्क्रॉल करते वक्त. लस्ट, तुम खोल रहे हो, तुम्हें दिखता है, तुम भी फॉलो कर रहे हो, और मटीरियलिज्म. सिक्लिकल हैं ये. इनको एक बार हो ही नहीं सकता कि मैंने कंज्यूम किया और मैंने कहा थैंक यू, यही चीज चाहिए थी, खरीद ली, हो गई, मिल गई मुझे. अनलिमिटेड है. जो भी एडिक्शन की बात करते हैं, जो तुम जिस तरह के वीडियोस देख के उनका सेवन करते हो, वो कभी रुक पाते हो? तो तुम ये ना कहना तुम्हें समझ में नहीं आता लस्ट का सेवन कैसे सिक्लिकल है. तुम्हें पता है, क्योंकि तुम रोज 2 बार 3 बार या 1 बार, तुम भी जो सुबह अगर कर लियो तो तुम्हें छुट्टी मिल जानी चाहिए ना, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए. छुट्टी क्यों नहीं मिलती? अरे सुबह कर तो लिया, मिल गया ना. बट नहीं, शाम को वापस उतने ही भूखे होते हो तुम, उतने ही तरह से ऐसे पागल से हो रहे होते हो, और देखने को हो रहा होता है, फिर भाई कहीं से छुप छुपा के कैसे भी देखते हो ना. तो वो चीज जो भूख सुबह मिटाई थी वो कभी मिटी ही नहीं. ये है नेचर. इसको जो समझ लेगा वो समझ जाएगा कि ये एक मेज है. आप एक ही सर्कल में भागे बढ़ो. जो समाज में चल रहा है वो बच्चे बनेंगे. फिर हम प्रश्न पूछते हैं आजकल के बच्चों के मानसिक हेल्थ के परखच्चे क्यों उड़े हुए हैं? कैसे नहीं उड़े होंगे मानसिक हेल्थ के परखच्चे? तुम बच्चों को सिखा क्या रहे हो? बच्चों के साथ खेलना नहीं सिखा रहे हो. तुम बच्चे को स्टेटस सिखा रहे हो. जब वो 9 साल का है, उसको क्या समझ है स्टेटस की? Oh, she comes home, she's upset. She asks if she can have a real Stanley. Do I think that a 9-year-old needs a Stanley? No. Do I have one? Yes, I have one. If you're a mom, if you're a parent, and you can do something to keep your child from getting made fun of, to help fit in, you're gonna do it. So we went and bought her a 30-ounce Stanley. Because of this I understand that. तुम एनी डे जो भी माता पिता है उनको ये डर लगेगा ना, बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा, उसको बुली होगा, अगले दिन तुम केव कर जाओगे. तुम ये थोड़ी कहोगे बच्चे जो कि लुड़, वो 9 साल का बच्चा है. अभी तुम सिखा सकते हो, बट वही बात है ना, समाज क्या बनता चला जा रहा है. peer pressure to fit in and be successful in all aspects of your life, paired with everyone's addiction to social media, we're now turning to faking a desirable lifestyle. The beautiful, rich influencers known for their expensive taste might just be cosplaying to build an audience. They're not showing all the beauty procedures they've gotten or the loan sharks knocking on their door. Did you know you can loan out luxury bags instead of buying them at full price? Pay a fraction of the cost, make a little TikTok, take a cute Instagram, wear it while playing Genshin on Twitch, then return it the next day. It's actually a pretty good business model. The only problem is, how often are you seeing influencers who built their audience by being rich say, yeah, I rented this bag like a movie from Blockbusters. Here's a little tea on what some influencers don't want to tell you. So get a nice box like this, and then you do your little unboxing. But most of the time, these bags are loaned. So you get to loan it for a period of time for photos and videos, but you have to give it back. And there are some circumstances where they'll be trays and you get to keep the bag for posts and whatnot like that. So I'm not saying... Just think like from the point of view of a designer, how clever this strategy is. बस तुम्हें ये करना है, तुम्हें एस्पिरेशनल बनना है.
That's it. That's all you have to manage. Maybe a very hard thing, but अगर तुम एस्पिरेशनल बन गए तो लोग तुम्हारी चीज को खरीदेंगे तो तुम्हारा फायदा, क्योंकि वो चीज है असल में 400 रुपए की, वो बेच रहे हैं तुम्हारे 4 लाख रुपए की. दैट्स व्हाट डिजाइनर प्राइस टैग्स आर बाय द वे, अगर जिसको नहीं पता. 4 लाख से 40,000. और तुम अगर कोई खरीद रहा है तो तुम इतना प्रॉफिट मार्जिन उठा ही रहे हो, और ना भी खरीदे तो तुम रेंट करके कमा रहे हो, और तुम्हारा फ्री मार्केटिंग ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे लोग नाच रहे हैं, उनको कन्विंस कराया जा रहा है. खुशी का उत्तर यही है, खुशी का उत्तर ये लाइफस्टाइल है. पालथी मारो अभी और आंख बंद करो और मेडिटेट करना स्टार्ट करो. मैं लिख के दे रहा हूं, इस देश में, इस संसार में एक बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन लाना है मेडिटेशन का, अध्यात्म का. और वो बहुत कोई टफ चीज नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि सबको एनलाइटनमेंट चाहिए और सब चीजों पे अटैक करो. इंसान से कहो आंख जो खोल के जो तुम इस वक्त सेवन कर रहे हो उसका सिंपल उत्तर है आंख बंद कर लो. आंख बंद करो, आधे घंटे अपने साथ बैठो, उसमें इतनी चीजें हल हो जानी जिसकी कोई हद नहीं है. Every time, but loaning this from Forward, this product. A little meditation and a little introspection. A little introspection, जो कि मैंने बात की, जिसने हल्का सा सोच लिया उसको उत्तर इतनी जल्दी मिल जाएगा. कोई बहुत भयंकर आपको वो नहीं चाहिए इसमें बहुत डीप थिंकिंग, मेरे को विजडम और ये वो. अपने दिमाग से सोच लो उनके बारे में कि यार ये जो मैं मान के बैठा हूँ ये सत्य है, क्योंकि मैं सिंपल देख सकता हूँ कि एक्चुअल में मुझे याद आ रहा है इन सब चीज़ों से, मुझे कभी वो हुआ नहीं है. मेरे को बस अंदर फूल जाता हूँ मैं सब सोच के. पर जिन चीज़ों से मुझे एक्चुअल में मिला है, वेरीफाइबल जो सोर्सेज हैं इस सारी चीज़ों के, वो कंप्लीटली डिफरेंट थी और वो मुझे बेची ही नहीं जाती. I'm loaning and this Gucci from Reebok. When you see someone with a new luxury bag every month, just know they might be swapping out their old Prada bag for a new one, like a WWE tag team match. Flying comfortably in the air is a luxury only reserved for the wealthy. You've probably seen the memes, the millionaires who take their private jet from their house private to jet their तो private jet मुझे भी पता garage, है. or from रेंट पे मिलते हैं, पूरे घंटे घंटे के तुम्हें मिलते हैं, तुम्हें पूरे प्राइवेट जेट जाओ, जितनी इंस्टाग्राम फोटोज दी, ये तो मुझे पता है चीज. the stands to the football field to congratulate their boyfriend, being crammed into economy basic on a 300 capacity flight with 400 people on it. Poor people things. If you can't afford first class or your own charter plane, I guess you could go down the Blockbuster's purse route and rent your own private jet. And not even an actual jet, because those are still thousands of dollars per hour. You can get yourself a fake private jet set that's supposed to mimic the real thing at $100 an hour. The standard for being a successful influencer is showcasing sensational lifestyle that you can attain if you buy this course. My name is Wally Hughes, and I rent out a fake private jet for influencers to take pictures in. Yo, what's up, IG Live fam? We're having our business meetings 30,000 feet up today. Do you want your followers to think that you're successful? When you hustle, this is what you Or get. do you want them to think that you're with the peasants in economy? I'm on the phone with my Bitcoin advisor here, but I'm also in a Zoom meeting for my advisory business for kids that want to learn how to trade baseball cards. Thanks to Wally and the entire team, my followers will never know that I actually get a direct deposit from my father the first of every month. It's a lot of work to build an audience. Was the 16 live viewers and 18 likes worth it? Not to view shame, but internet users are so savvy, they can smell when authenticity is faked. This is gonna be my home for the next 12 hours. Cockpit selfie. So I wanted my followers to think that I only fly private. Thanks to Wally and the team, Spirit Airlines is a thing of the past. Paris, here we come. Mom. Well, they did a good job. I was convinced. There are actually businesses that will build sets like this for anyone that needs a private jet photo shoot. Comes with your choice of paper backdrops and worn out yellow couch in the background. There have been times when self-claimed financial experts have been called out for making TikToks looking like they fly private all the time, when in reality, a pilot noticed that specific plane hasn't flown since February and they were only renting it for photo shoots. Even celebrities have fallen victim to the deduction skills of Internet Phoenix Wrights. Can't forget the time when the rapper Bow Wow posted a picture of himself about to board his private jet when he actually just jacked a picture from a car dealership and got caught flying in economy with everyone else. At least Photoshop the picture a little or wear a Scooby-Doo disguise. If his outfit could fool an entire flight staff into thinking a dog was a person, no one would bat an eye at your fake private jet flex. Even events that are known to be celebrity and influencer hotspots like Coachella, there's a lot of catfishing going on. I didn't know this, but apparently a lot of them don't even attend the concert. Looking at the logistics, it's a very expensive event to attend. The tickets, flights, hotel, and food, you're spending at least a couple grand for the weekend. Okay, I haven't personally seen anyone talk about this, but I think it's hilarious and I have to share it because it's Coachella. Coachella's like the influencer Olympics, right? It's the place to be. But most influencers
or a lot of influencers, don't even go to Coachella. And I think that this is such a wild fact. They'll go out to the desert, get like an Airbnb, stay with someone, get their outfits, get their hair, get their makeup, post up Coachella day 1, Coachella day 2, and they don't go to the festival. They don't have wristbands. They just drive their little butts out to the desert. And that's it. Things are changing. Apparently it's not in to show off your wealth anymore. Wearing too many flashy logos plastered all over yourself is tacky. Like you're trying too hard to convince people you have money. Quiet luxury is the new thing that's in right now, where your plain white t-shirts cost $300 and each ha in your laugh has its own stock portfolio. Those are the actual millionaires, as seen on shows like Succession. Why? Because she's brought a ludicrously capacious bag. What's even in there? Huh? Flat shoes for the subway? Her lunch pail? If you see me at the club with my Hermes Birkin bag, just know I have a cup of Shin Ramyun in there and my Nintendo Switch. If you haven't seen something in person with your own 2 eyeballs, approach everything you see behind a screen with a "who's trying to scam me today" attitude. Don't let these unattainable standards make you feel bad about your life. You're doing just fine. The only one still falling for Nigerian Prince phone scams is the YouTube algorithm. Feed it some omega-3s by liking this video so it can get smarter. That also I like that.